the door. With legal capacity, we are inside. With legal capacity, we are inside. Yes. Everything is live. Everything is live. That's fine. We are in legal capacity. Maintain social distancing. Yes. We'll keep. Maintain social You work closing the door. Sign over here. Ma'am, please. Yeah. Ma'am, please. I'm sitting You now. put your signature on this paper. Please, ma'am. People here. Please acknowledge. Ma'am, please, I know. Better you come with us. Keep a distance. Better where you come with us. Are you coming with Keep a us? distance from me. Are you coming with us peacefully? Just one second. Just told. Are you coming with us? This is going to. Please, What I am asking, are you coming with us? Please wait. I am DYSP Praveen Patil. Listen. I am not finished. Listen. I am DYSP Praveen Patil from Raigad Police. I am here to arrest you in CR number 59 of 2018 under section 306 34 IPC. Why did you You have to cooperate me. You have to cooperate with me. Why did you physically assault? Please come. You physically Why assaulted did you by physically assault? Ajay, they have physically assaulted you. Yes. He's physically If assaulted you are you. going to cooperate, we are going to arrest him. They physically Someone We are assaulted. taking him to Raigad, Alibag. They physically assaulted They me. physically assaulted. ठीक है चल They physically assaulted me. I need to make some arrangements. चलो घर I need to make some arrangements. You are live. Shamo, I need to make some arrangements. I need to make some arrangements. You are live. You are live. I need to make some arrangements. I am elderly people in the family. I need to make some arrangements. I'm a journalist. You will have to know you have met 7 people. I am a- I am standing outside your residence. My- You will have to because We it's have not enough yet time. ready. You have physically assaulted me. I have some problems. No physically assaulted. You have You have to physically cooperate. assaulted me. Yeah. And I need to make arrangements with my family. So please wait outside. I'll come. No. You are under arrest right now. We'll give you we have your ample time. No, you don't physically assault me. चलो खाने का सब चलो खाऊंगा Don't touch my son. 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 Nobody has touched your first You have touched my son. You have assaulted me. You have physically assaulted me. You cannot physically. I'm telling you, you are physically assaulting me, assaulting my family. Please cooperate. Sachin, if you do this, you are Why is he taking me in the house in the morning? I am the editor-in-chief of Republic TV. You are physically assaulting me. Is this correct? Sachin, you tell me why you are physically assaulting me. I will not accept physical assault. सर आप बैठिए I will not accept. I will cooperate but not physical assault. बैठिए आराम से शांति से मैं बात करता हूँ Not physical assault. No. You have no. What happened? सर जी आप बैठिए मैं करता हूँ बात करता हूँ सर मैं चेयरमैन हूँ बिल्डिंग का मुझे अभी पता लगा आप मुझे बता देते मैं थोड़ा I need to make arrangements for elderly people. सर जी आप बैठिए मैं There करवा are some elderly आप people बैठिए in the सर family. I need to make some arrangements. प्लीज Maintain social distancing and sit around. Ma'am, you know, This is my house. Please maintain social distancing. You are in our custody. Let me talk to under once. You can't physically assault me. कोऑपरेट कीजिए I have to make arrangements for my family members before leaving. What arrangements you want? हम अरेंजमेंट कर रहे हैं I will make arrangements. You can't. I have to make arrangements. I have elderly parents. I have to make arrangements for their treatment. They're not there. We will My hand is injured. Yeah. It's your right to do it. It's your right to do it. Please do it. Sachin. Yeah, so why don't you leave now? Residents can make the arrangements. You are in our custody now. No, but I can't do this while you are sitting here. Arnab, you are in our custody. There are 20 And you people in are my house. no, yes. By doing this, you are making problem to yourself. No. Please don't do Don't that. You have worry, physically we are ready assaulted for me. any Sabi. problem. Who Don't worry. assaulted? Shamo, We will take you have physically assaulted me. I have not assaulted. You have. Arre, when? Sachin, you and he have. No, I think I will not. This physical assault chain, which has I came happened. later. I just want to tell you, viewers, I came these later. are the people here. Shamo, is this live? अर्नब जी आप No. These are the people, they have We physically have to assaulted use me. force now. We have to use force now. If you do like this, प्लीज please don't do that. प्लीज Please don't कोऑपरेट do कीजिए that. लीगल एक्शन है Then we will use आपको force. पूरे लीगल राइट्स है आप जो Yes. करना है आप एडवोकेट को Yes. बोल दीजिए आपको पूरे लीगल राइट्स है लेकिन Yes. अभी Shamo. आपको हमारे साथ चलना You पड़ेगा assaulted me. Shamo, they've assaulted Yes, us. I have got that all live. That's gone live, Great. that assault. Great. And this person assaulted me, I don't know his name. Just want to give a report before going. Shamo, first of all, don't worry.
आप कोऑपरेट कीजिए। Everything will be all right. अर्नब जी, These people have entered my house and आप physically लीगल assaulted एक्शन me के लिए today. कोऑपरेट कीजिए। This is therefore the high-handedness of the Mumbai police. They came at 6 o'clock in the morning. They physically assaulted me. They pulled me out of my house. They dragged me by my belt. This person and Sachin gentleman, Vase, this gentleman. who has entered my house illegally, physical assault is unacceptable and I have been, it cannot be done. Listen, he is an encounter cop. Listen, you please go down, I'll make arrangements. You please go down, I'll make arrangements. You have physically assaulted me, I'm injured. I now need to take medical advice and because of your physical assault, I am feeling unwell. So I'll take medical advice. वो भी मिलेगा। नहीं, वो physically assault me. I need to मेडिकल असिस्टेंस भी मिलेगा, लीगल एड असिस्टेंस भी मिलेगा, लेकिन अभी आपको हमारे साथ सचिन जी मुझे फिजिकली असॉल्ट किया गया है, इसलिए मैं कोई आई एम अ वेरी वेलेबल सिटीजन। इफ यू हैव फिजिकली असॉल्टेड मी, आई नीड मेडिकल एडवाइस बिफोर लीविंग बिकॉज आफ्टर द फिजिकल असॉल्ट आई एम नॉट फीलिंग वेल। अभी आपको चलना पड़ेगा। कोऑपरेट कीजिए। I need We would like to record the I need to physical make assault. arrangements for my family members. Please, Shamo, just record this. I don't want to talk. Please, yeah, suggestion here. I want to talk to my family before leaving. Will you leave the room? Give me privacy to speak to my family. I want to speak to my family. Please, Arnab, please, we are requesting you, please. Don't physically assault. No one has physically assaulted you. You are First of all, don't surround me like this. आप you are in चलिए। our custody. अभी चलिए। चलो प्लीज। You are no one to dictate We are anything. requesting। You are in our custody. Don't shout at me. You are in our custody. You are in You police physically custody. assaulted me this I have morning. not. I have not. What is the charge? Sorry? What is the charge? We will tell you. We will give in writing. No, you have to tell me. Yeah, we have already given a letter. Once again, I will tell you. Once again, I will tell you. Is case number 69 of 2018 under section 306/34 IPC about Raigad police. Come on. That this is closed. No close, not It has close. been open. It's open. You have been arrested. You are arrested. You are arrested by Raigad police. Come on. You have been arrested by Raigad police. चलिए उधर yeah Say they have assaulted me. Shamo, listen, I want to speak to my wife. I want to speak to my wife. I want to speak to my wife. झालं उचला आता मोबाईल द्या त्याच्याकडे. You उचला can't. उचला त्याला दिसू दे Shamo, उचला record. चला उचला Shamo, record this. बाहेर आम्ही एक तास उभे होतो ना, मॅडम. मग एक तास आम्ही बाहेर उभे होतो ना. चलो अभी प्लीज चलो प्लीज। चलो चलो इनफ Come, you come by your own. हम टच नहीं करते। But I need to consult my doctor. yes every all medical help will be given. You will get everything. Doctor. You will get everything. Advocate. Yes, everything you will get. Come on. Jay, Shamo, चलो just call the doctor. We have चलो magnificent. चल भाई उचला Shamo, I need to speak to my wife. चल उचला Sachin, just stay away from me. I need to speak to my no wife. no I you need have to gone too speak much. to my wife. Yeah, you are creating trouble for yourself. I need to speak to my wife. Yes. Shamo! Assault! Don't push my son. आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सब नपुंसक हिजड़े। कोई एक इंडिविजुअल या एक चैनल, अरे भाड़ में गया टीआरपी, भाड़ में गया टीआरपी। और तुम लोग जो बाकी प्रेस वाले हो, आज तुम लोग चुप्पी साध के बैठोगे तो याद रखना नाजी जर्मनी में क्या कहा गया था। याद है कि जब मेरे पड़ोसी पे हमला हुआ तो मैं चुप रहा कि अरे मेरे पे थोड़ी ना हुआ ऐसा। अबे कल तुम जेल में होगे। क्योंकि मजाक है। भारत के लोग नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, जो मर्जी चाहे मरवा दे, कुछ भी कर दे, जेल में डाले, पीट दे, ये कर दे। क्या है साहब ये? कोई लड़ाई का मैदान नहीं जहां मैं लड़ा नहीं हूं, जहां मेरे दाएं मेरे बाएं लोग नहीं मरे। तुम क्या समझते हो? तुम फौजी को डराओगे? तुम इसे पाकिस्तान बनाना चाहते हो? तुम इसे शी जिनपिंग का चीन बनाना चाहते हो? और आप समझते हो कि हम चुपचाप सह लेंगे, थूका चाट लेंगे? साहब नहीं होगा साहब। ओवर आर डेड बॉडीज। हमने वर्दी डाल के लड़ा था इस देश के लिए। ओके, इन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये सब देख रही है। देर है, अबे देर है, अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। सेंट्रल सरकार को इस पे एक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी प्रोविंस में द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड एज पर द रूल ऑफ लॉ, देन देयर इज अ लॉ, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान है, हमारी आजादी की रक्षा करेंगे। ऑलराइट,
आगे 25,000 हमारे जवान ऐसे फालतू शहीद नहीं हुए। आगे का क्या एक्शन रहेगा सर इसके ऊपर से अब आपकी? अरे साहब हम नहीं रुकेंगे जब तक ये जो भंडाफोड़ नहीं होता, ये जो ढकोसला है ये खत्म नहीं होता। यू कांट मेक अ तमाशा आउट ऑफ दिस रिपब्लिक। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है साहब। पूरी दुनिया देख रही है कि तुम इसे पाकिस्तान बनाना चाहते हो, तुम इसे शी जिनपिंग का चीन बनाना चाहते हो, और आप समझते हो कि हम चुपचाप सह लेंगे, थूका चाट लेंगे साहब? नहीं होगा साहब। ओवर आर डेड बॉडीज। हमने वर्दी डाल के लड़ा था इस देश के लिए, ओके? हम वर्दी डाल के लड़े थे इस देश की रक्षा के लिए। और अगर इस देश की संविधान पे, इस देश की आजादी पे, अभिव्यक्ति की आजादी पे, प्रेस की आजादी पे हमला होता है, हम सब पर हमला है। एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। इट इज नॉट कोई एक इंडिविजुअल या एक चैनल। अरे भाड़ में गया टीआरपी, भाड़ में गया टीआरपी। और तुम लोग जो बाकी प्रेस वाले हो, आज तुम लोग चुप्पी साध के बैठोगे तो याद रखना नाजी जर्मनी में क्या कहा गया था। याद है कि जब मेरे पड़ोसी पे हमला हुआ तो मैं चुप रहा कि अरे मेरे पे थोड़ी ना हुआ है साहब। अबे कल तुम जेल में होगे। क्योंकि मजाक है। भारत के लोग नाली के कीड़े हैं, गली के कुत्ते हैं, जो मर्जी चाहे मरवा दे, कुछ भी कर दे, जेल में डाले, पीट दे, ये कर दे। क्या है साहब ये? एक क्वेश्चन ये है कि अगर आज दोनों का स्वामी को जिस तरह सुबह उनको ले जाया गया, जबकि अगर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस अगर ये सही रीजन नहीं बता पाती है कि उनको क्यों उठाया गया था, तो उनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन पुलिस पे भी और उन नेताओं पे भी। देखिए साहब, हर पुलिस का अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। रूल्स ऑफ सिविल सर्विस अप्लाई। यू कैनॉट टेक द लॉ इनटू योर ओन हैंड्स। आपको कानून पे चलने के लिए, कानून को बचाने के लिए वर्दी हम सबको दिए, ठीक है? आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते साहब। एंड इफ यू डू, होम मिनिस्ट्री को यहाँ कंप्लेंट गए हैं। तो अभी मतलब सेंट्रल सरकार को इसमें इंटरसेप्ट करना चाहिए। सेंट्रल सरकार को इस पे एक्ट करना पड़ेगा। अगर किसी प्रोविंस में द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंडक्टेड एज पर द रूल ऑफ लॉ, देन देयर इज अ लॉ, देयर इज अ लॉ, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान है, एक संविधान है साहब। किसने उसको एब्रोगेट किया है? शी जिनपिंग से आप हुक्म लेके आए। आप उसको शी जिनपिंग का घटिया यहां पे क्लोन बनाना चाहते हैं। वहां किसी अभिव्यक्ति को आजादी नहीं। वो तो ये नहीं बोलते कि हमारे कितने जवान मरे। ठीक है साहब, आप इसको ये चाइना बनाना चाहते हैं। क्या हो तुम? क्या हो तुम? तुम हमारी आजादी छीनोगे? बुध होके आओ। सर अभी पता चला कि अर्णव गोस्वामी का मेडिकल हुआ है, तो उसमें उनको काफी चोटें आई उनके बैकबोन पे। क्या कहना है इसके बारे में? तो फिर एक रूल ऑफ लॉ है, एक रूल ऑफ लॉ है इस देश में, या कानून व्यवस्था सब हट गई, घर की खेती बन गई? किसने इस देश की संविधान को एब्रोगेट किया? बताइए मुझे। तो आपको अनाउंस तो करना चाहिए ना था साहब कि कानून संविधान सब खत्म है, परिवारवाद होगा यहाँ पे। तो सर वो क्या लगता है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन अब लगना चाहिए? आपको लग रहा है कैसा माहौल बनता जा रहा है? क्यों नहीं लगना चाहिए? बहुत पहले लग जाना चाहिए था। व्हाट डू यू मीन क्यों नहीं लगना चाहिए? इज दिस द रूल ऑफ लॉ? देखिए साहब, हम बच्चे हैं। कॉज इफेक्ट चेन आप और मैं नहीं देख सकते कि उसने ये किया, उसने एक चीज का मुद्दा उठाया कि क्या हुआ, एक औरत को उठा के 13वीं फ्लोर से क्यों पटक दिया गया बगैर कपड़ों के? बगैर कपड़ों के। चाहते हो कल तुम्हारी माँ बेटी के साथ हो? क्यों साहब हम चुप रहे? तो तुम दूसरा मारोगे, तीसरा, चौथा मारोगे साहब, या ये कहां रुकेगा? हो कौन तुम? कौन हो तुम? तुम हमारी आजादी छीनोगे? अबे हम झक मार के हम 25,000 लोगों को हमने शहादत दी है लड़ाई के मैदानों में अपनी आजादी बचाने के लिए। नेताजी की फौज थी 60,000 की, 26,000 शहीद हुए थे आपको आजाद करने के लिए। इसलिए कि कहीं हर 2 टके का तानाशाह यहाँ पे इस गली से उगे, उस गली से उगे, इस पॉलिटिकल पार्टी से आए, बख्शिश बनते जा रहे हैं। ये समाज सेवा के नाम पे। अरे साहब, अगर बाढ़ खेत को खाएगी तो क्या होगा? तो सही मानो पे माफियागिरी, माफिया ये लोग इस तरह माफिया जैसे काम कर रहे हैं। माफिया से बड़े। अबे हम क्या डॉन के चमचे हो गए? दाऊद इब्राहिम हमारा बादशाह है? तुमने समझा क्या है? दाऊद इब्राहिम राज करेगा, तुम राज कराओगे? सर पत्रकारों पे हमेशा कभी यूएपीए लगा दी जाती है, कभी कोई धारा लगा दी जाती है, तो ये क्योंकि तुम लोग चुप हो। तुम्हारी चुप्पी सबको सुनाई दे रही है।
तुम्हारी चुप्पी सबको सुनाई दे रही है। मीडिया के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडिया के अंदर भी फाड़ है। देखिए आप, ये ऐसे समय में देखो, हमको बताया था जब वसूल की लड़ाई है कोई कीमत नहीं गिनी जाती, कोई कीमत नहीं गिनी जाती। मेरी जान जाए, मेरे चीथड़े उड़ जाए, अरे मेरा बड़ा भाई माइन से फट के मरा था, ठीक है, दो इतने बड़े टुकड़े भी नहीं मिले थे, इकट्ठे करके जितने मिले उनको जला दिया था। उसके अगले साल में फौज में आया था, ठीक है साहब। 65 में वो शहीद हुआ, 66 में मैंने फौज में एनडीए की मैंने इम्तिहान दे दिया, अपना इंटरव्यू दिया, और 67 में फौज के अंदर था। कोई लड़ाई का मैदान नहीं जहां मैं लड़ा नहीं हूं, जहां मेरे दाएं मेरे बाएं लोग नहीं मरे। तुम क्या समझते हो, तुम फौजी को डराओगे? कांग्रेस और एक तरह से अंदर ही नगरी चौपट राजा वाला हिसाब किताब बन चुका है, और इन सबको बर्खास्त कर देंगे और जनता को। अरे साहब, पिछली बार कांग्रेस आई थी दिल्ली में तो इमरजेंसी लगा दी और सोचा था कि लोग भूल जाएंगे। यहाँ थोड़ी ना रहेगा कि हमने किसको मारा, किसकी नस काटी, किसका क्या किया। बाप का राज है, बछड़े का राज है, तब भी था ना। ठीक है साहब, 2 साल बाद जनता के पास आए हाथ जोड़ के, और जनता ने टिका दिया। हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ मत समझना। सर, जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री सब चीजों पर बात कर और मुंह तोड़ जवाब देंगे इंटरनल दुश्मनों को, ये भी एक तरह से बात ही है। बिल्कुल, हमको पूरी उम्मीद है कि अब दिल्ली को जो चुनौती दी गई है वो उस पर रिस्पॉन्ड करे। हमारे प्रधानमंत्री उचित कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल उचित कार्रवाई करेंगे। चल रही होगी। दिल्ली को जो चुनौती दी गई है, इन योर फेस जो बोला गया है, जो कोर्ट्स का मजाक उड़ा दिया गया है, ये तो साहब अब बर्दाश्त के ज्यादा। सर, जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे पूरी तरह से धृतराष्ट्र बन चुके हैं अपने पुत्र मोह के चक्कर में, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की बलि चढ़ा रहे हैं। देखिए साहब, वो जिसकी भी बलि चढ़ाएं, हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की बलि नहीं चढ़ा सकते। बिल्कुल, वो हमारी फ्रीडम ऑफ द प्रेस की बलि नहीं चढ़ा सकते। नहीं तो हम एक डेमोक्रेसी ही नहीं रहेंगे साहब, प्रजातंत्र नहीं रहेगा। अरे शी जिनपिंग का चाइना हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। ये तो हम चले जाते वहां ना, बीजिंग चले जाते हम। एक मतलब क्या है साहब, ये तो हद है। आप हमारी प्रजातंत्र को उखाड़ फेंकोगे। आप प्रजातंत्र से बड़े हो, आप हमारे संविधान से बड़े हो नहीं हो साहब। इतना गरूर मत करना, इतना अभिमान मत करना। उस अम्मा और बछड़े ने भी किया था, अकल आ गई थी उसके बाद। और अभी तो तुम केवल एक वहां गए हो, एक प्रोविंस के अंदर आपको थोड़ा सा राज जैसे लिया है, सब जानते, ठीक है। और आप समझते हो वहां से इमरजेंसी पूरे भारत पे लगाओगे, और बाकी सब हम हाथ पे हाथ धरे बैठे देखते रह जाएंगे। अभिव्यक्ति की आजादी हम तुम्हें दे देंगे, चुपचाप डर के मारे लोट लगाएंगे कि साहब हमारे घर पे एक बुलडोजर ना चले। मतलब एक प्रजातंत्र में आपको क्रिटिसाइज करने की सरकार को पूरा अधिकार है। सर, क्या लगता है ऐसे महाराष्ट्र सरकार और कांग्रेस सरकार अपने गुनाहों को छिपाने के लिए अर्नब गोस्वामी को दबा रही है? देखिए साहब, वो गुनाह करें ना करें वो है कोर्ट्स का फैसला। मैं यहाँ पे हूँ कहने के लिए कि आप मेरी अभिव्यक्ति की आजादी छीनने वाले कौन हैं? आप हम लोगों की प्रेस की आजादी छीनने वाले कौन? Who the hell are you? कौन हो तुम? तुम प्रजातंत्र से बड़े हो, भारत के 1.3 अरब लोगों से बड़े हो तुम। बाकी हम सब गली के कुत्ते हैं, नाली के कीड़े हैं तुम्हारे लिए। हाँ, नाली के कीड़े हैं, जिसकी भी जान ले लो, जिसको भी ये कर दो, जिसको भी जेल में डाल दो, जिसका भी घर फोड़ दो, कोई कार्टून दिखाए तो उसके हमारे फौजी का सर फोड़ दो। क्यों साहब? नहीं, किस लिए? और आज अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो सब नपुंसक हिजड़े। सर, जिस पाल घर में साधुओं के ऊपर हमला हुआ था, सुशांत का हत्याकांड हुआ, उसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन अर्नब गोस्वामी के ऊपर वो चौथा केस चल रहा है साहब। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? क्या हम दूध पीते बच्चे हैं? हमको दिखता नहीं कॉज इफेक्ट चेन? ये हुआ फिर प्रतिक्रिया ये हुई, ये हुआ फिर ये केस लगा, ये हुआ फिर ये केस लगा, ये केस। कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था जब ममता बनर्जी ने की पुलिस ने एक बेचारी महिला को दिल्ली से बुलवाया था, कोई ट्वीट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम समझते हो हम यहाँ पे मजाक के लिए हैं? जो हम लोगों की जो प्रेस की फ्रीडम, अभिव्यक्ति की आजादी को बचाने के लिए। मुझे पक्का यकीन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये सब देख रही है।
सुनो, देर है, अबे देर है, अंधेर नहीं है, देर है अंधेर नहीं है। सर, आपको नहीं लगता मोर देन एनीथिंग इट इज ऑल बीइंग ऑपरेटेड फ्रॉम कराची, दी कंपनी सिटिंग देयर एंड यूजिंग। और क्या है, और क्या है, और क्या है? एक दाऊद डी कंपनी का डॉन हमारे सर पे चढ़ा के बिठा दिया साहब, तुम उसको राजा बनाओगे? अबे हद हो गई साहब, ये तो मतलब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस समय हमारे देश के ही लोकतंत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने आज मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय अब आ चुका है। आज हमारे पास दो विकल्प थे, एक ये कि हम पहले अपने लोकतंत्र की बात करें और दूसरा कि पहले दूसरों के लोकतंत्र की बात करें। लेकिन फिर हमने ये तय किया कि पहले हमें अपने लोकतंत्र की बात करनी चाहिए, पहले हमें अपने घर की बात करनी चाहिए। अमेरिका की बात करने से पहले यह देखना चाहिए हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। और यह नौबत इसलिए आई क्योंकि आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर से आज सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब गोस्वामी पिछले काफी समय से खबरों में थे, बने हुए थे, कभी सुशांत सिंह के मामले को लेकर, कभी टीआरपी घोटाले की वजह से, कभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ अपने विवाद को लेकर, तो कभी शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ मुखर होने को लेकर। लेकिन तब हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमें यह लिखा कि हम कुछ बोलते क्यों नहीं, क्योंकि हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये उनकी अपनी पत्रकारिता थी। ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, किस तरह की खबरें दिखाना चाहते हैं, अपने चैनल पर क्या कहना चाहते हैं। और बहुत ईमानदारी से कहें तो हमें उन सारे मामलों के बारे में उस समय पूरे तथ्यों की जानकारी भी नहीं थी कि हम उस पर अपना कोई फैसला सुना सकें कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसलिए हमने ये पूरा मामला उन पर छोड़ा कि वो अपने चैनल पर क्या करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की पूरी आजादी है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करें, किस तरह के प्रोग्राम्स आपको दिखाएं, और ये आपके ऊपर है कि आप किसको कितना पसंद करें। इसलिए उस समय हम शांत रहे, हम चुप रहे, हमने समय लगाया। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा उस समय कि इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हम चुप क्यों हैं। लेकिन हम चुप इसलिए रहे क्योंकि सत्य हमेशा समय लेता है। आपको हमेशा सत्य को समय देना चाहिए, और ये समय हमने लिया क्योंकि हम आपके सामने सत्य के अलावा कुछ और नहीं रखना चाहते। फ्रांस के एक मशहूर लेखक वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि तुम जो बोलते हो मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। ये वो शब्द हैं जो आज भारत के पत्रकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी जो कहते हैं, हो सकता है उससे हमारे देश के बहुत सारे लोग सहमत ना हो सकता है मैं भी सहमत ना हूं, लेकिन हम उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें दिलाकर रहेंगे और हम इसके लिए लगातार लड़ते रहेंगे। क्योंकि आज बात यह नहीं हो रही कि वो जो कहते हैं वो सही है या गलत है। आज बात यह हो रही है कि जो उनका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, जो वो कहना चाहते हैं, वो कहने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। और आज ये अधिकार छीनने की कोशिश हुई है, आप तस्वीरों में आज देख सकते हैं। इसलिए आज हमने ये सोचा कि आज हम अर्नब गोस्वामी पर बात करेंगे, आज हम पत्रकारिता पर बात करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे कि सच बोलना अब कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, सच बोलना कितना महंगा पड़ सकता है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि झूठ अब कितनी खतरनाक मिसाइल बन चुका है और झूठ का सामना करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और सच का साथ देना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो रास्ता क्या है? लड़ाई लड़ना एक बहुत अच्छा रास्ता है, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन क्या ये सारी चीजें इस बात का भी इशारा कर रही हैं कि अब पत्रकारिता से रिटायरमेंट लेने का समय आ चुका है? पत्रकारिता का जो गोल्डन पीरियड था अब वो समाप्त हो चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरी खबर को समझ लीजिए।
अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी के केंद्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत या टीआरपी घोटाला नहीं है और इसका उनकी पत्रकारिता से भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें 2 वर्ष पुराने एक केस में गिरफ्तार किया गया है। यहां नोट करने वाली बात यह है, यह केस आज का नहीं है, 2 साल पुराना केस है और उन पर एक अन्वय नायक नाम के व्यक्ति और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को इस व्यक्ति के कुछ पैसे लौटाने थे, लेकिन उन्होंने ये पैसे नहीं लौटाए, जिसके बाद इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा और कहा कि मैं उनकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूं और फिर आत्महत्या कर ली। यह व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, आत्महत्या कर चुका है, लेकिन यह केस पुराना है। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि पिछले साल पूरी जांच करने के बाद इसी रायगढ़ पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था और तब अर्नब गोस्वामी की ना तो गिरफ्तारी हुई थी, ना ही उनसे कोई पूछताछ हुई थी और तब पुलिस ने यह कहकर इस केस को बंद कर दिया था कि उनके पास इसे लेकर कोई और सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए, इसी पुलिस ने। लेकिन अब आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की बेटी ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फिर से शिकायत की और आज सुबह अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको संक्षेप में इस केस का इतिहास समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको आगे आसानी रहेगी। महाराष्ट्र की अलीबाग पुलिस ने 5 मई 2018 को इस मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। तिथि नोट कर लीजिए, 5 मई 2018। अब 2020 खत्म होने वाला है। 26 अप्रैल 2019 को पुलिस ने इस मामले में एक समरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की और एक तरह से इस केस को बंद कर दिया। जुलाई 2020 में नायक परिवार इस केस को रीओपन करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अपील दायर करता है। पिछले महीने 12 अक्टूबर को नायक परिवार पुलिस से मिला और इसकी आगे की जांच की मांग की और ठीक 3 दिन के बाद ही, देखिए कितनी फुर्ती से, 3 दिनों के अंदर 15 अक्टूबर 2020 को अलीबाग पुलिस की सीआईडी यूनिट ने अदालत को यह भी बता दिया कि वो इस केस को दोबारा खोलकर अब नए सिरे से इसकी जांच शुरू कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाने वाले नायक परिवार का इस पर क्या कहना है और उनकी गिरफ्तारी पर कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है, आज पूरा देश बटा हुआ है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत नाराज है, बहुत क्रोधित है और अर्नब गोस्वामी के साथ और फ्री प्रेस के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ नहीं है। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं। आप पहले इन प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए, उस परिवार की बात भी सुन लीजिए जो परिवार ये चाहता है कि इस केस को दोबारा से ओपन किया जाए। मेरे पिताजी ने 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट पे लिखे हैं और इनके वजह से ही मेरे पिताजी ने सुसाइड, मेरे पिताजी और मेरी ग्रैंडमदर ने सुसाइड किया है। एंड दोनों के डेथ के लिए कारण ये अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे 2 लोग हैं वो है। और अर्नब गोस्वामी ने ये ठान ही लिया था कि पैसे तो देने ही नहीं है और सब जगह से अटका के कि इंसान जी नहीं सकता है। ईमेल भी किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कि मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, आप मेरे पेमेंट दो। मैंने खुद जाके भी खुद फोन पे बार बार रिक्वेस्ट की है मोहित को, सुंदरम को कि हमारे लेजिटिमेट ड्यूज दो। 6 करोड़ 40 लाख के आसपास का वर्क ऑर्डर था। इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी काफी हुआ है और लास्ट मिनट चेंजेस भी काफी उन्होंने फोर्सफुली कराए थे। हम लोग ने सब करके वी हैव हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली और उसके बावजूद भी फोर्स करके उन्होंने 83 लाख पे आए थे। ये डिसाइड हुआ था और 83 लाख भी उन्होंने आज तक दिए नहीं है। एंड इसके वजह से ये मेरे पिताजी का लास्ट प्रोजेक्ट था, वो कोई और प्रोजेक्ट ले नहीं पाए एंड ही गॉट entrapped in all these vicious circle. He couldn't take his business ahead. There was no means, no salary could be paid. So all this has happened. अगर उनको सुसाइड नोट में झूठ लिखना होता ये सब चीज के बारे में तो बिल्कुल लिख जाते कि ये पैसा लेके मेरे बीबी और मेरे बेटी को दे दो। उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि पैसा लेके मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स को दे दो।